Good afternoon, everyone. Welcome to earnings conference call of Suzlon India Electricals Limited for Q1 FY27. On behalf of Moonwalk Capital, I would like to thank management of Suzlon India Electricals Limited for giving us the opportunity to host the conference call. From the management side, we have Mr. Vishal Jain, who is the chairman of the company, Mr. Ved Prakash, who is the CFO of the company, and Mrs. Reshma, who is the company secretary of the company. As a part of safe harbor rules, participants please note this call will be recorded, and I would like to inform you that this call may contain certain forward-looking statements and should view in conjunction with the risk and uncertainties of the company's matter. I would now like to hand over the call to Mr. Vishal Jain for his opening statement. Hi, good afternoon, everyone, and thanks for joining us today. At Suzlon Electricals India Limited, we manufacture winding wires, conductor, and power cables, catering to government utilities, EPC contractors, and private sector customers across India. We are pleased to report a strong start to financial 27, supported by robust execution and improving product mix and better EBITDA per unit across our product portfolio. During the quarter, our focus remained on strengthening our core manufacturing business and increasing the contribution from higher value products. We are seeing a continued shift in our product mix toward LT and HT and MVCC cables, which offer higher value addition and stronger margins potential compared with our traditional products. This change is already reflecting positively in our operating performance, with EBITDA per unit improving across products. Going forward, our objective is not just to grow volumes, but to improve the quality of revenue and profitability through a better product mix and stronger operating efficiencies. Going forward, as we move through financial 27, our priorities remain clear: improving our product mix, increasing EBITDA per unit, executing our orders efficiently, and completing our capacity expansion before schedule. Exploring opportunities for railways, defense, and in the process compelling company product at leading power sector companies and other big companies which do business in power sector. With strong demand visibility and expanding manufacturing base and improving operating metrics, we remain confident about sustaining our growth momentum through full financial year 27. With that, I would now like to hand over to my CFO, Mr. Ved Prakash, for highlighting financial performance. Hello. Unmute करो, unmute नहीं है तुम्हारा. Please. Hello everyone. In financial year 27 saw a strong financial improvement with revenue rising 279% year-to-year to rupees 9535.68 lakh and operating profit growing 980% year-to-year to rupees 1137.34 lakh. PAT turned positive at rupees 639.313 lakh versus a loss of 41.55 lakh of last year, supported by higher scale and better product mix and improved EBITDA per unit. Okay, thank you for the opening statement. I would now like to open the floor and the forum for the questions. Participants can raise the hand to ask the questions, and please note we will limit the 2 questions per participant. So the first question is from the line of Sapphire Capital by Nishita Sanklecha. Yes, am I audible? Yes. You are audible. Thank you for taking my questions, and congratulations on such good set of numbers. So I just wanted to understand if you could give segmental wise
margin breakup. So, from what I understand, we have three segments: LT cables, HT cables, and winding wires. So, if you could give EBITDA margins for each segment, that would be great. Yeah, this is the EBITDA margins which we had achieved in the first quarter and for the first quarter of last year also. So, EBITDA margin of this LT cables and conductors had risen this 65%, that is risen by team, and HT cables of 7% and winding wires 24.39, as you can see on the screen also. Okay, okay. And how do we see the revenue mix going forward? So, from what I understand from our management commentary, it's written that we are expecting the HT cable and conductors and HT cables revenue mix to increase. Yeah. So, how do we see that mix going forward from the current level? That we are focusing mainly on HT cables and MVCC. We are targeting this market which uses HT cable and MVCC, as very few companies operate in this segment, and it has higher EBITDA margins. So our main focus is to increase the revenue from this product only. But from what I see, this segment has the lowest EBITDA margins of 7%. Because this is only because revenue is से थोड़ा जितना revenue LT cable से हमारा आया है, revenue generally it is increasing with the time. That is why this is showing less EBITDA margin, because revenue is also less in this sector, but the total volume. Okay, Yeah, okay. So as the revenue grows, operating leverage will kick in and the margins will get better. Yeah. So at peak, like what could be the best margins that we expect from HT cable segment? I think with the HT cables, I think the net margins will be around 20%. If I think this is the potential of HT and MVCC cables. Oh, so we can like increase the margins from 7% to 20%. No. I'm saying that HT and MVCC cables have the margins. Their net margins are that, but that depends. Our total EBITDA depends on our revenue. कितना revenue HT and MVCC contribute करते हैं in our total this. So regarding this, I can say that our revenue will grow from मतलब अभी जितना हम revenue कर रहे हैं around 5 to 10% हम कर रहे हैं HT and MVCC का, that will grow around 15% in this year, in the last of this year, and Okay. उससे it will increase the EBITDA margin. But per unit, I am saying about the per unit sale of EBITDA margin of HT and MVCC is around 20%. Okay, understood. And if I could take in 2 questions, if you'll allow me. Yeah. Yeah. Sure. So, what is the total capex that we are doing in FY27? What is the total amount of capex we are doing? Total amount of capex in financial year 26. 27. 27, yeah, sorry, 27. We are right now, I don't have the data, but I can give you around like 10 crore. We will do around 15 to 20 crores of between 15 to 20 crores of capex during the 27. Okay, and this is going to be for our factory expansion only. That is going to be commissioned in Feb. And only factory, only in the machinery. Only in machinery I'm talking about this. Okay, understood. And then machinery only. And my last question is on our revenue growth. So if you could give some sort of guidance on what sort of revenue can we see in FY27, like we've done around 279% of growth in Q1 FY27 YOY. So what kind of revenue can we see for the whole year FY27? I cannot give you the absolute figures, but the growth will go same, I think, because the power sector is very hot right now, and it will remain very hot for the last 5 years and for the next 5 years. So I think the growth will be very
fine. I can say that. The same as you are looking at for my financials for the last, if you look at the financials of mine for the last 2-3 years, you will get an idea. I can say that it will go like that only. Oh, okay, understood. Yeah. Thank you so much and all the best. Yeah. Okay. Next question is from the line of from Mr. Akash Chaudhary from Easy Equity. Sir, you can unmute and ask the question. यस, आवाज सुन रही है क्या सर? Yes. हाँ, मेरा HT केबल्स में आपने बताया 20% का मार्जिन है, बाकी दो वाइंडिंग और LT केबल कंडक्टर में आइडिया दे सकते हैं कितना काइंड ऑफ मार्जिन है उसमें? एक्चुअल में वैसे तो एब्सोल्यूट मार्जिन हमारा चेंज होता रहता है एज पर ऑर्डर्स वगैरह, बट आई कैन से दैट के अराउंड हमारा जो मार्जिन है वो उसमें अराउंड आप समझ सकते हैं कि 10-15% के बीच में आ जाता है, 10-15%. अच्छा, तो मतलब LT भी 10-15 बोल सकते हैं, वाइंडिंग वायर आई थिंक कम होगा तो वो 10% के हिसाब से होना चाहिए. हाँ, मतलब वैसे क्योंकि मार्केट में इज वेरी फ्लक्चुएटिंग मार्केट, कंपटीशन में कभी रेट कभी ज्यादा कभी कम वो सब चलता रहता, तो वी कैन गिव यू दैट इट इज बिटवीन 10-15%. गॉट इट. तो इसी पे एक फॉलोअप है, तो अभी जैसे अपना तो रॉ मटेरियल कॉपर लगता है राइट, तो काफी टाइम से वॉलेटिलिटी थी बट अभी थोड़ा सॉफ्टनिंग हो रहा है इन द प्राइस, तो उससे हम लोग उसको मतलब कैसे हेज करते हैं जब भी ऑर्डर्स आती है, ये पहला है. इसका दूसरा पार्ट ये है कि हम लोग को ऑर्डर का विजिबिलिटी कैसे मिलता है, मतलब कस्टमर आके हर 6 दिन में ऑर्डर देता है या 3 महीना में, या हम लोग बिडिंग करते हैं, मतलब आई एज अ इन्वेस्टर मुझे कैसे समझ आएगा कि हम लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर कैसे आ रही है? बिल्कुल साहब. एक्चुअल में जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, दैट इज कॉपर एंड एल्युमिनियम. फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पहले आपको आंसर दे देता हूँ. उसमें क्या होता है, जो हमारे कस्टमर्स, जो हमारी लाइन होती है, इसमें हमारा जो सेल होती है या ऑर्डर होता है, दैट इज वेरिएबल ऑन प्राइसेस. जैसे ही ईमा या केकमाई के रेट्स आते हैं एज पर क्योंकि कॉपर एंड एल्युमिनियम इज वेरी फ्लक्चुएटिंग, सो जो हम मटेरियल सेल के टाइम पे हमारा एक बेस डेट पे हमारा एक रेट फिक्स हो जाता है कि इस बेस डेट पे हमें ऑर्डर मिला है जो हमने बिड करा है. तो उस बेस डेट के हिसाब से जब अगर एल्युमिनियम में कॉपर बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ रेट मिलता है, घटेगा तो घटा हुआ रेट मिलता है. जनरली 95% ऑफ ऑर्डर्स हमारे ऐसे होते हैं. 5% जो फर्म प्राइस के ऑर्डर होते हैं वो बहुत उसी मंथ में जाने वाले ऑर्डर होते हैं, तो इसलिए उसमें हमें हेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. सो दिस इज आर, तो हमें हेजिंग करना नहीं पड़ता है इस अपने बिजनेस में, बिकॉज इट इज ऑन द ऑर्डर मिला उसी टाइम प्राइस लॉक कर लेते हैं. यस. और उसके बाद अगर बढ़ा तो वो बढ़ा, मतलब सप्लाई समझ लीजिए हमें सप्लाई नेक्स्ट 4 मंथ्स में करनी है एक ऑर्डर की सप्लाई. तो आज मैंने अगर अपना प्राइस फिक्स करा है तो वो एक बेस डेट समझ लीजिए मैंने 1 अगस्त के रेट पे अपना ऑर्डर फिक्स कर लिया पार्टी से. सो अब उसके बाद अगर नेक्स्ट मंथ मैं सप्लाई कर रहा हूं तो 1 अगस्त, अब मैं 1 अक्टूबर को अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो 1 अक्टूबर को जितना रेट एल्युमिनियम और कॉपर का बढ़ जाएगा उतना ही बढ़ा हुआ मेरा भी प्राइस उतना बढ़ जाएगा उससे, या घटेगा तो घट जाएगा. अच्छा, घटेगा तो घट भी जाएगा. यस. अगर घटेगा तो घट जाएगा, मतलब हमारा मार्जिन जो है वो फिक्स हो जाता है कि हमें इतने रेट पे करना है. अगर एल्युमिनियम 100 रुपए का है और उस समय 200 रुपए का हो गया और 10 रुपए हमारी मार्जिन मिल रहा है उसके ऊपर, तो हमें 10 रुपए हमारा फिक्स हो जाएगा. बट अगर 100 से 200 हो गया तो 100 रुपए बढ़ जाएगा मेरा, और घट गया तो घट जाएगा. अच्छा, तो बेसिकली वही है कि वॉलेटिलिटी रह सकती है, अगर अचानक से कॉपर या एल्युमिनियम गिर जाएगा तो मतलब दिक्कत आ सकती है. तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते हैं कि 100 पे ही हम लोग सामने वाले को फिक्स करा लें कि 100 + 10, मतलब कॉस्ट प्लस मॉडल टाइप, कि जैसा भी हिल जाए प्राइस ऊपर नीचे हो, अपना बीच का अपना 10-15% अपना बनना चाहिए. वैसा नहीं होता है क्या? आप उल्टा कह रहे हैं. आप उल्टा कह रहे हैं. अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो परेशानी आ सकती है हमारे उसमें कि अगर वो तो जुए वाला काम. आप समझे नहीं. अगर आपने मेरे को ऑर्डर दिया, समझ लीजिए आज कॉपर चल रहा है, एल्युमिनियम चल रहा है 400 रुपए का, आपने, तो मैं सप्लाई जब मैं करूंगा उस समय अगर बढ़ गया, उससे 15 डेज पहले का मेरे को रेट मिलता है. मतलब जितने में मैंने एल्युमिनियम खरीदूंगा तभी तो सप्लाई करूंगा ना. आपने मेरे को आज रेट दे दिया समझ लीजिए 400 रुपए के एल्युमिनियम पे, कि आपको 20 रुपए ऊपर 420 रुपए का मैं ऑर्डर देता हूँ, 400 रुपीज एल्युमिनियम चल रहा है. अब अगर मैंने उसको सप्लाई करते टाइम अगर एल्युमिनियम 500 रुपए हो गया तो फिर तो मेरा मार्जिन चला जाएगा ना.
500 रुपये अगर एल्युमिनियम हो गया तो 100 रुपये बढ़ा करके मेरे को सेलिंग प्राइस मिलेगा। अगर मेरा घट जाएगा तो मैं फिर एल्युमिनियम खरीदूंगा भी तो लोअर रेट पे ही ना, आप समझिए। अगर घटेगा तो फिर मेरा मार्जिन फिक्स है, अगर ऐसा नहीं होगा तो जुए जैसा काम हो जाएगा एकदम, जैसे कि तो उल्टा हो जाएगा अगर मेरा फिक्स नहीं होगा तो। आप समझ गए होंगे, आई होप मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ समझ गया मैं। ठीक है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ऑर्डर बुक वाला पे मतलब कैसे विजिबिलिटी मिलता है? हाँ, क्या ऑर्डर बुक के लिए क्या होता है कि हम एक तो टेंडर बेस काम करते हैं गवर्नमेंट के, हम जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है जो, उसमें हम टेंडर निकलते रहते हैं अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स कंपनीज के, इनके अलग अलग निकलते रहते हैं। तो हम इसमें टेंडर में हम पार्टिसिपेट करते हैं, एंड टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के बाद इसमें जो है L5 मतलब L1 कहते हैं लोवेस्ट बिडर को, L1, L2, L3, L4 ऐसे जो बिडर बढ़ते रहते हैं। तो जनरली जो हम बिड करते हैं उसमें L5 तक ऑर्डर्स हमारा कस्टमर प्रोवाइड करता है ऑन द रेट ऑफ L1 रेट्स। सो उसमें हमारी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिलती है, हर टेंडर में मिल जाती है। सो हिंदुस्तान में बहुत से टेंडर्स हैं, मतलब पूरे इंडिया के अंदर तो टेंडर्स इतने निकलते हैं कि हम सारे भर भी नहीं पाते हैं, जितना हमें लगता है कि हम पूरे कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड इन मैन्युफैक्चरिंग। जितना हम पूरा कर सकते हैं उतने हम टेंडर्स में बिड करते हैं, उतने में हम एक्सेप्ट करते हैं। L1 वाले को लेना जरूरी होता है और L2 वाले के पास ऑप्शन होता है कि वो ले या ना ले। सो कहीं फिर जितने हमारे को लगता है उतने हम टेंडर्स ओके कर देते हैं, बाकी रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो होता है कि जब हम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी से काम करते हैं। और इसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी क्योंकि उनके पास ऑर्डर, उनको भी एक एरिया को डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए टेंडर्स मिले हुए होते हैं, तो वो लोग हमसे लेते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे एपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह और प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि काम करते हैं, जो हमें अप्रोच करते हैं, हम उन्हें अप्रोच करते हैं। सो उनसे भी रेगुलर चलता रहता है जैसे जैसे। ऑर्डर इज नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि इस समय बहुत सारा इंडिया में बहुत ज्यादा काम है इलेक्ट्रिफिकेशन का। सो दैट इज द थिंग। ओके, तो ऑर्डर का आई थिंक 290 है, तो अपने साल का ऐसा कुछ ले सकते हैं क्या 500 करोड़ या 600 करोड़ हम लोग अचीव कर पाए? क्योंकि जो लास्ट ईयर में करा था उसका तो ऑलमोस्ट मतलब 30-40% तो हम लोग ने फर्स्ट क्वार्टर में ही कर लिया है। तो मैंने अभी बताया, बिकॉज आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस एज पर द रूल्स ऑफ सेबी, बट मैं बस आपको इतना कह सकता हूँ कि हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी, जैसी चल रही है वैसी रहेगी। एंड वी आर मतलब हम अपनी तरफ से वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वी विल ग्रो लाइक दिस ओनली, सो दैट वी कैन से अबाउट फ्यूचर। किसी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये कह सकते हैं कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले टाइम से देखते हुए ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी कैसी जा सकती है। सो एंड वी आर डूइंग आवर मतलब सब कुछ कर रहे हैं हम, सो दैट वी कैन अचीव द टारगेट। एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें जैसे हम लोग सिर्फ वायर का ही काम करते हैं, तो कुछ प्लान है क्या थोड़ा वैल्यू चेन में अप जाने का, जैसे मे बी थोड़ा स्पेशलाइज वायर या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, अप्लायंसेस या ऐसा कुछ? एक्चुअल में जो मेरा प्रोडक्ट है ना, इसमें स्पेशलाइज्ड में एक तो MVCC इज ऑलरेडी a स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। MVCC जिसकी हमने सेल्स काफी अभी पकड़ी है। अभी मैं जो पश्चिमांचल में कंपनी ऑफ यूपी स्टेट गवर्नमेंट, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अभी टेंडर डाला था MVCC के ऑफ 11 kV एंड 33 kV। उसमें मैं 11 kV में आई एम L1 एंड इन 33 kV आई एम L2। सो इसमें भी बिल्कुल सारी कंपनीज आई थी, मतलब सारी बड़ी कंपनीज ही आई थी। सो उसमें मैं आया हूँ। MVCC क्या होता है कि MVCC एक कवर्ड कंडक्टर आज बन रहा है, जो पिछले 1 साल से अभी ज्यादा हॉट हुआ है। इसमें हमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स डालने होते हैं, जिसकी वजह से उसके जो कंडक्टर होता है, जो आप रोड्स पे लगा हुआ देखते होंगे, अब ये कवर्ड आ रहा है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड केमिकल कंपाउंड्स डलते हैं, जिससे कि वाटर इसके अंदर सीप नहीं होता है, वाटर उसके अंदर नहीं आता है। सो एक तो ये हमारा स्पेशलाइज है। HT भी अभी बहुत कम कंपनीज बना रही हैं। और मेरे पास अभी प्रोडक्ट में क्या है कि वाइंडिंग वायर्स आल्सो आई एम मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कोई भी केबल कंपनी नहीं बना रही है। सो राइट नाउ मेरा ये प्रोडक्ट अपने आप में वैसा चल रहा है। बाकी
अगर हम कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी सी हैं फ्यूचर प्लानिंग्स जो कि मैं एक बार अचीव हो जाएंगी तो मैं बताऊंगा, पहले बताने का कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि यार वो रहता है कि भाई पहले अचीव हो जाए, देन वी विल मेक एन अनाउंसमेंट कि हमने ये एक और नई चीज अचीव करी है। Got it. ठीक है, thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, Okay. Just before we move ahead, I think, Vishal ji, if you can clarify on that product level, EBITDA margin wise in percentage and in per unit. I think there has been some confusion while you were explaining earlier. तो आप एक बार केवल ये बताइए कि हमारे हर प्रोडक्ट का परसेंटेज मार्जिन कितना है और हमारी जो EBITDA पर यूनिट की क्या लगभग ग्रोथ रही है और ओवरऑल एक्सपेक्टेड हमारा ब्लेंडेड लेवल पे हमारे मार्जिन कितने रहेंगे। आई थिंक दैट नीड सम क्लैरिफिकेशन हियर। just hold on, I just think I have. Yes, this is our products: winding wires and strip, aluminum conductors, LT cables, ST cables, and MVCC. So you are asking about the EBITDA margin per product. हाँ सर, परसेंटेज वाइज अपना आप EBITDA का एक रेंज दे दीजिए। अभी हमारा जैसे ब्लेंडेड लेवल पे 12% है, ओके, अराउंड 12% इज आवर 12% EBITDA मार्जिन। हमारे प्रोडक्ट वाइज मार्जिन रेंज अभी क्या चल रही है और ओवरऑल एक्सपेक्टेड मार्जिन हमारा कितना रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। ट्वेंटी 26 में जो था हमारा रहा था वो Q1 में वाइंडिंग वायर से 11.81 करोड़ रहा था, 11.81 लाख रहा था। एंड नहीं सर, आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे। द क्वेश्चन वाज कि हमारा प्रोडक्ट वाइज मार्जिन कितना है, लगभग EBITDA मार्जिन हमारा कितना आता है परसेंटेज टर्म्स में। LT में ज्यादा आता है, HT में ज्यादा आता है, वो क्वेश्चन था। HT में सबसे ज्यादा आता है, बट आई थिंक आई हैव दैट, मेरे पास वो डाटा अभी जो लास्ट मेरे पास था वो डाटा अभी मेरे पास है कि नहीं है। I think I have that data with me or not. ठीक है सर, आई थिंक मेरे पास अभी है नहीं वो एब्सोल्यूट टर्म्स में। मैं आपको पर केजी आप पूछ रहे हैं, पर यूनिट? सर पर यूनिट का आप ट्रेंड बता दीजिए, हमारा पर यूनिट मैं बताता हूँ। वाइंडिंग वायर का जो फाइनेंशियल ईयर 27 में आया था वो लास्ट ईयर मेरा 11.81 था, इस बार 45.65 पर केजीज में आया है, जो बड़ा है। LT केबल्स एंड कंडक्टर्स का जो फाइनेंशियल ईयर 26 में आया था वो 6,696 रुपीज पर किलोमीटर आया था, एंड इस बार वो 21,359 रुपीज पर किलोमीटर आया है, जो ये बड़ा है। एंड ST केबल्स में लास्ट ईयर हमने पर किलोमीटर 21,084 रुपीज पर किलोमीटर का हमारा EBITDA मार्जिन आया था, बट दिस टाइम this quarter we got 55,086 rupees of EBITDA margin per kilometer. This is मतलब तीनों में ही EBITDA margin का मैंने आपको बता दिया, जो बड़ा है हमारा जितना। Okay, got it. Yeah. Okay. Next question is from the line of Mr. Divyansh Thakur from Finterest Capital. Sir, you can answer. Yeah. I'll go ahead. Sir, बहुत बधाई हो रिजल्ट्स पे। सर तो मैंने पिछले 3 साल के रिजल्ट देखे, जैसा आपने कहा, आपने बोला कि 1% कैगर ग्रोथ हुई है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? और सर जस्ट अगली बार अगर आप जस्ट एक क्लैरिटी, एक स्लाइड ऐड कर पाए कि क्या EBITDA मार्जिन हमारे सेगमेंट्स में है, क्योंकि अभी भी मैं डाउट में हूँ, तो बस। EBITDA मार्जिन आप कौन से किस चीज के डाउट में है सर? मतलब EBITDA मार्जिन जो हम दिखाए हैं Q1 में या लास्ट ईयर जो हमारा EBITDA मार्जिन था? नो सर, अभी मतलब हमारा लास्ट ईयर क्या था, देन Q1 में क्या चेंज हुआ, LT केबल, ST केबल,
एंड ऑल्सो सर मतलब प्रोडक्ट वाइज एंड लाइक अभी जैसे पहले इस पे आप बता दें। हाँ, प्रोडक्ट वाइज अगर मैं बताता हूँ आपको, तो मैंने अभी बताया जैसे कि जो मेरा वाइंडिंग वायर का है वो 10 to 15% रहता है, वाइंडिंग वायर, एलटी केबल्स एंड कंडक्टर्स का वो जनरली 10 to 15% आता है। एंड जो हमारा एचटी केबल्स है दैट कम्स अराउंड 20 to 25% के बीच में रहता है। ये मार्जिन हमारे ऑन एबिटा मार्जिन इतने के आसपास रहते हैं दोनों में। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था उसके बाद? सर आपने कहा कि जो हम पिछले 3 साल में हमने जो ग्रोथ दिखाई है वो हम अभी आगे भी जाके कंटिन्यू करेंगे, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ हम 50-55% कैगर ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे गोइंग अहेड? यस यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल। वो ग्रोथ एक्चुअल में ग्रोथ इसलिए भी है कि पावर सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी। एंड दूसरा क्या है कि मैं आपको अपनी ग्रोथ का एक और बता देता हूँ। हम जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं ये सारे वाइंडिंग वायर, एलटी केबल्स, कंडक्टर्स, एनएसटी केबल्स, एक तो ये सारे प्रोडक्ट्स कोई भी कंपनी सारे प्रोडक्ट्स में काम नहीं कर रही है। ये सबसे ज्यादा कोर चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिफाइड अगर हमें इंडिया को करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वाइंडिंग वायर्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में लगता है। तो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स जो लगते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को घर जैसे हम अगर हमें गांव गांव में बिजली पहुंचानी है तो उतने ही ट्रांसफॉर्मर्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो वो ट्रांसफॉर्मर्स बिना वाइंडिंग वायर के नहीं लग सकते। जितने ट्रांसफॉर्मर इंडिया में लगे हुए हैं वो 20% के आसपास वो फूकते हैं। उनकी एक लाइफ होती है ट्रांसफॉर्मर की, तो उसके रिपेयर के लिए वाइंडिंग वायर चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल आइटम है। उसके बाद जो एलटी केबल्स एंड एसटी या जो भी कुछ ये एलटी एंड कंडक्टर्स की है कि डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है। सारी के सारी मतलब जहाँ पे अभी कंडक्टर्स लगे हुए हैं बेयर कंडक्टर्स, वहां पे हटके एलटी केबल्स लगाई जा रही हैं ताकि चोरी ना हो सके और लाइन लॉस कम से कम हो। एंड वहां से हटा करके एसटी केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स डाली जा रही हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में अभी होना है। तो ये प्रोडक्ट्स इतने हॉट, इतने ज्यादा डिमांड में है कि डिमांड की तो प्रॉब्लम नहीं है। तो और हम अपनी तरफ से हम ये सारे प्रोडक्ट्स में वी आर अप्रूव्ड वेंडर इन ऑल ओवर इंडिया। हम जो टेंडर्स की पीक्यूआर आती हैं वो बहुत रेयर ही कोई ऐसी पीक्यूआर आती है जो हम मैच नहीं कर पाते, जो हम टेंडर नहीं डाल पाते। बाकी इन सब टेंडर्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। एंड डिमांड की नहीं है तो मेरे को लगता नहीं अभी कोई फैक्टर नहीं लगता जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ कम होगी। और हम भी अपनी तरफ से पूरे मोटिवेटेड हैं टू डू दैट। ओके सर। एंड सर मैंने देखा कि आपका एक्टिव ऑर्डर पाइपलाइन 150 करोड़ है, बट आपने टोटल ऑर्डर विजिबिलिटी 292 करोड़ बोला है, जिसमें से हमारे कंफर्म्ड ऑर्डर्स 142 करोड़ है। तो सर ये जो 150 करोड़ हमारा है उसमें से हमारा कन्वर्जन रेट क्या है, विन रेट? 150 करोड़ का जो हमने ना हम ऑन एन एवरेज हम जो है अराउंड 800 to 1200 को ऑर्डर्स में बिड करके रखते हैं, जिसमें से कि हमारा कन्वर्जन का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो 15 to 20% रहता है। मतलब कन्वर्जन तो ज्यादा रहता है, मतलब जो हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि L1 अगर हम नहीं है तो हमारे पास एक्सेप्ट करने या ना करने की अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। तो हम ये समझते हैं कि उसमें से जितना हमने बिड करा है उसमें से 150 करोड़ या 200 करोड़ के हमारे पास ऑर्डर्स आ ही जाएंगे। और जो मैंने पाइपलाइन में डाले थे उसमें कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी हैं जिसमें ऑलरेडी L1 L2 आए हुए हैं, जिसमें कि हमें LOI बस इशू होना है। सो इस तरह से वो डला हुआ था। नॉट 150 में से हमें कन्वर्जन मिलना है। वो बिड तो हमारे 1000 करोड़ के हो रखे हैं, उसमें से कन्वर्जन मैंने उसमें से डाल रखा है कि इतने के एक्सपेक्टेड हमें मिल जाएंगे ऑर्डर्स। तो सर आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप अगली बार से हमें बिडिंग पाइपलाइन बताएं क्या है जो आपने अभी बोला 800 से 1200 करोड़ जो आप कह रहे हो, रेदर देन दिस फिगर कि हम एक्टिव क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ज्यादा मैं दोनों फिगर्स दे दिया करूंगा। हाँ एग्जैक्टली। और एबिटा मार्जिन्स ऑल्सो अगर आप ऐड कर पाए अगली बार से हमारे लिए। एबिटा मार्जिन्स तो सर मेरे जो मैंने अभी एबिटा मार्जिन तो जो मैंने अभी आपको दिया है उसमें आ ही रहा है ना, जो मैं अपने रिजल्ट दूंगा उसमें एबिटा मार्जिन आ सकता है। फ्यूचर एबिटा मार्जिन नहीं दे सकता मैं,
आपको जो मैंने अचीव कर लिया है वही दे सकता हूँ ना। नहीं सर, फ्यूचर नहीं, जो सेगमेंट्स में आप अचीव कर रहे हैं बस वही आप बता दें, बाकी वो तो सर आया हुआ होगा मेरे इसमें, मेरी जो मैंने दिया है उसमें EBITDA मार्जिन तो लिखा ही होगा मेरा। Vishal ji, their question is around the product wise margin. प्रोडक्ट वाइज मार्जिन, ओके श्योर श्योर। मैं प्रोडक्ट वाइज जो हमने करा है, ठीक है, डेफिनेटली मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स का नेक्स्ट टाइम से आपको कंसोलिडेटेड ना दे करके प्रोडक्ट वाइज का हम डाल दिया करेंगे इन आर जो बैलेंस शीट या जो भी हम। यस सर, दैट वाज माय पॉइंट, थैंक यू। एंड सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन मेरा था कि आपने बोला हमारे अलावा वाइंडिंग वायर्स कोई नहीं करता सर, सो देयर आर कंपनीज लाइक KSH, रत्नावीर। नहीं मैंने ये नहीं बोला सर, वाइंडिंग वायर बनाने वाले तो बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, बहुत होंगे। मैंने कहा केबल इंडस्ट्री में जो केबल भी बना रहे हो और वाइंडिंग वायर भी बना रहे हो, ऐसे बहुत ही रेयर कंपनीज होंगे। समझ गया। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Okay. Next question is from the line of Mr. Badal Singh Rawat from Trust Plutus. Sir, you can unmute and ask the question. Yeah, thank you so much, sir, and congratulations on a very good set of a number, and especially on the margin front. सर मेरे एक क्वेश्चन है, एक्चुअली दो क्वेश्चन है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर आपका केपेक्स क्या रहेगा FY27 का, क्या टारगेट है आपके माइंड में? केपेक्स हमारा जैसा मैंने बताया था कि 15 to 20 करोड़ के आसपास हम केपेक्स कर लेंगे इस बार। अराउंड 15 to 20 करोड़ का हमारा केपेक्स रहेगा, बढ़ ही सकता है, कम नहीं रहेगा साहब इससे ना। ओके। और ये जो ऑर्डर बुक है हमारे पास, ये आप उसका मिक्स बता सकते हो कि मतलब कहाँ कहाँ से क्या आ रहा है, प्लस इसमें डिस्कॉम का कितना एलोकेशन है? जो ऑर्डर बुक आई हुई है मेरे पास, मैं आपको अभी मेरे पास एब्सोल्यूट डाटा तो नहीं मैंने इसका बना रखा है, बट आप समझिए कि हम जो भी चल रहा है हमारा अराउंड 50% के आसपास चल रहा है। 50% टुवर्ड्स प्राइवेट एंड 50% टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑर्डर्स। सो अभी आप ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय में भी हमारा ऐसा ही रहेगा अराउंड, बट प्रोडक्ट वाइज तो मेरे पास अभी नहीं होगा। जो हमने अचीव कर लिया है उसमें मैं शायद आपको बता सकता हूँ कितना रहा होगा। एक सेकेंड, आई थिंक वो हमारी उसमें आया होगा कितना हमने। So Vishal ji, he is asking कि जो हमारी अभी करंट ऑर्डर बुक है ऑफ अराउंड 150 करोड़, उसमें क्या बाइफर्केशन है, कितना LT/HT से है, कितना MVCC का है, कितना वाइंडिंग वायर्स का है? दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको एक उसका रफ आइडिया दे सकता हूँ, अभी मेरे पास वो प्रॉपरली वो नहीं है। अराउंड आप समझिए कि जितना भी ऑर्डर बुक हमारे पास आज की डेट में चल रही है उसमें अराउंड समझिए आपकी 30% के आसपास HT केबल्स एंड MVCC का चल रहा है, एंड ऑर्डर बुक में अराउंड कैलकुलेटर अराउंड 35% के आसपास LT एंड कंडक्टर्स एंड बैलेंस अराउंड 35% के आसपास वाइंडिंग वायर्स। ये हमारा जो ऑर्डर्स की सिचुएशन है वो अंदाजन इसके आसपास ही होगी, थोड़ा बहुत परसेंट नीचे होगा, 1-2%, 2-3% ऊपर नीचे, बाकी इस हिसाब से है हमारा अंदाजा। ओके, थैंक यू सो मच सर, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जो भी आपका प्रोडक्ट वाइज अगर मार्जिन मिल जाए तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, तो उसमें इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। यस, प्रोडक्ट वाइज मार्जिन मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बाकी एग्जैक्टली ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अलग अलग वैसे बता दूंगा। या थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Okay, next question is from the line of Mr. Ajit Sethi from Eco Quantum Solutions. Thank you for the opportunity. Sir, अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या चल रहा है यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में? कैपिटल यूटिलाइजेशन अराउंड 85 to 90% के आसपास ही चल रहा है इस समय, सब यूनिट का मिला के? यस। ओके, और सर हमारा जो नया कैपेसिटी आने वाला है फेब में, सो हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पीक यूटिलाइजेशन कर सके?
बिफोर दैट मतलब उससे पहले ही हम करेंगे, मतलब जो हमने आपको दे रखा है उससे पहले ही, काफी पहले ही हो जाएगा। कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी भी मेरा चल रहा है। जिस समय मैंने आरएचपी फाइल करा था उससे, डीआरएचपी फाइल करा था उससे आरएचपी फाइल करा था, उसके बाद ऑलरेडी हम काफी कर चुके हैं। एंड उसके अलावा भी राइट नाउ चल रहा है, और जो हमने टाइमलाइन दिया उससे पहले ही हमारा हो जाएगा वो कैपेसिटी एक्सपेंशन। या सो ओके, बट हम लोग वो जो यूटिलाइजेशन है, वो पीक यूटिलाइजेशन, वो कैपेसिटी में हम लोग कौन से साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 85-90% का? वो तो हमें इसी साल अचीव हो जाएगा, साथ के साथ ही चल रहा है मेरा। वो तो जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जा रही है वो 85, 90 पे ही चल रही है। तभी हम, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेवेन्यू ग्रोथ तभी हम अचीव भी कर पाएंगे, और कर भी पा रहे हैं। वो तो हम जैसे जैसे कैपेसिटी ऐड होती जा रही है वो साथ के साथ ही यूज होती जा रही है उसी रेशो में। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए और कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा हमें, वो भी हम साथ के साथ प्लानिंग है उसकी भी सारी की सारी। ओके। और Orders, सर already have orders, so we are doing capacity expansion. We will make sure कि हमारी capacity expansion full पे चलाएंगे हम, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे जो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगले साल की प्लानिंग भी अभी से चल रही है, उसके लिए इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन हम और कर रहे हैं, जो आपको अभी दे रखा था हमने आरएचपी में। उसके अलावा भी कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है हमारा, उसके भी ऑर्डर्स गए हुए हैं, आगे की मशीन्स के भी सब कुछ कर रहे हैं। सो वो अभी तो लगता है मेरे को कि कैपेसिटी फुल पे ही चलती रहेगी हमारी, कम करने का तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को ऐसा अभी तक। ओके, सो फिर सर हमारे पास वो लैंड अवेलेबल है, वो जो नया कैपेसिटी हम लोग सोच रहे हैं जो ऐड करने का, और क्या कुछ अंदाजा दे सकते हैं कितना कैपेसिटी हम ऐड करने का सोच रहे हैं? अभी लैंड तो अवेलेबल है। मैंने जो थर्ड यूनिट है उसमें ओनली 20% एरिया कवर था, अभी हमने उसको 100% कवर कर दिया है। सो लैंड अवेलेबल है, इसीलिए हम सारी मशीन वहाँ पे लगा रहे हैं। एंड नेक्स्ट ईयर आफ्टर, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हमारा ये टारगेट है कि हम ये जो जितनी भी मेरी तीनों चारों फैक्ट्रियां हैं अलग अलग, इसके लिए हमने प्लानिंग कर रखी है। राइट नाउ मैं अभी उसको नहीं बता सकता, बट प्लानिंग हमारी ऑलरेडी हो गई है कि हम ये सारी की सारी एक और बड़ी जगह पे और बेटर लोकेशन पे एंड और बेटर जिसमें लैंड अवेलेबल होगी हमारे पास और बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए, वो भी हमारा चल रहा है। सो एंड व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? एक तो आपने ये पूछा था लैंड अवेलेबल है नहीं है, और उसके साथ क्या पूछा था आपने? नहीं सर, नहीं, मेरे को मिल जाए सर आंसर। और सर मेरे को एक पूछना था सर, आप जो हेजिंग मैकेनिज्म आपका समझा रहे थे एक पार्टिसिपेंट को, तो क्या आप सर वापस से समझा सकते हो मैं कैसे आप बता हेज करते हो? आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी में मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की। मैं देखिए, जैसे एक टेंडर में टेंडर को लेके बताता हूँ। जैसे कि एक टेंडर निकलता है, उसमें लिखा होता है कि आपको जो टेंडर में रेट देने हैं, समझ लीजिए अभी मैं एक टेंडर भर रहा हूँ, तो उसमें लिखा होगा कि आप 1 जुलाई के कैकमाई पे रेट भर दीजिए। कैकमाई होता है जिसमें रेट निकलते हैं एल्युमिनियम के, कि 1 जुलाई को क्या रेट है एल्युमिनियम का। तो ये इसके इस कैकमाई के बेस पे हम अपना रेट भर देते हैं। सपोज करिए मैंने पर किलोमीटर का रेट डाल दिया किसी केबल का 1 लाख रुपीज पर किलोमीटर का रेट मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैंने अब समझ लीजिए कि मेरे को इसमें ऑर्डर मिल गया, तो मेरे को ऑर्डर मिला था, समझ लीजिए 30 सितंबर को ऑर्डर मिला है इसको। 1 जुलाई का मैंने रेट डाल दिया था एंड मैं L3 L4 आ गया, और मेरे को समझ लीजिए 200 किलोमीटर का ऑर्डर गवर्नमेंट ने दे दिया कि भाई आप इस ऑर्डर को सप्लाई करें। अब ये ऑर्डर मैंने 1 महीने मैंने बनाया, तो मैंने 30 सितंबर के बाद ये मेरा सप्लाई हुआ, समझ लीजिए 1 अक्टूबर को फर्स्ट कंसाइनमेंट गया है इसका अराउंड 1 करोड़ रुपीज का। अब इसमें क्या होगा कि अब 1 जुलाई का क्योंकि रेट था, तो रेट तो फ्लक्चुएट हो करके 1 अक्टूबर तक चेंज हो चुके होंगे एल्युमिनियम या कॉपर के। मेरे को अब मैं इंस्पेक्शन जब लगाऊंगा, समझ लीजिए मैंने 1 अक्टूबर का इंस्पेक्शन लगाया गवर्नमेंट में या कहीं पर भी अपने प्राइवेट प्लेयर को, कि आप आकर के इंस्पेक्शन कर लीजिए मेरी। जिस समय मैं इंस्पेक्शन लगाऊंगा उससे 15 डेज पहले का जो कैकमाई का रेट होगा, जो भी उस समय कैकमाई के हिसाब से एल्युमिनियम, समझ लीजिए उस दिन 400 रुपीज था, ₹400 पर केजी था, एंड 15 डेज पहले 15 सितंबर को एल्युमिनियम का रेट समझ लीजिए 500 पर केजी हो गया। तो मेरे जो 1 लाख रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, जो भी हमारा इसमें फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला उसके अंदर लगता है, जो भी उस 1 लाख का मेरा रेट हो जाएगा, फिर 1.25 लाख नेट से, तो मैं 1.25 लाख की बिलिंग करूंगा।
सो इसमें ये होता है कि ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो मैं आज सप्लाई कर रहा हूं इसको मैंने 15 दिन पहले या 1 महीना पहले परचेज करा होगा इस एल्युमिनियम को, तो उस डेट का उस डेट का हमें रेट मिल जाता है। सो फ्लक्चुएट मतलब हमारी जो मार्जिन है या हमारी जो मजदूरी कह सकते हैं जो हमारी होती है वो फिक्स हो जाती है कि हमें इतना मिलना है। जितना एल्युमिनियम बढ़ेगा या कॉपर बढ़ेगा उतना हमारा रेट बढ़ जाता है उसी रेशो में और सप्लाई के टाइम पे, और घटेगा तो उतना ही घट जाता है। शायद आप अब समझ पाए होंगे सर इस पॉइंट को। ओके, सो मैं क्या समझा, मैं आपको बताता हूँ। सो अभी समझो हम लोग ने एक कॉन्ट्रैक्ट में बिड किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें, समझो हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में बिड किया जुलाई को, और हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई करना है सितंबर में। तो 15 दिन पहले का जो एल्यूमिनियम प्राइस रहेगा, वो एल्यूमिनियम प्राइस पे हम लोग अपना प्राइस लॉक इन कर लेंगे, और उसके बाद जब हम लोग सप्लाई करेंगे जिस डेट पे, उस टाइम का जो एल्यूमिनियम प्राइस रहेगा, अगर समझो 15 डेज पहले प्राइस 400 था, और उसके बाद जो एल्यूमिनियम प्राइस जब हम लोग ने सप्लाई किया अगर वो 430 हुआ, तो हम लोग को 30 रुपीज का गेन हो जाता है, राइट? और अगर 400 से नहीं ये नहीं है। जब हमने बिड करा उस समय अगर 400 था, जब हमने 1 जुलाई में का जो टेंडर में लिखा था कि आपको रेट 1 जुलाई के बेस से भरना है, अगर हमने 1 जुलाई के बेस से समझ लीजिए टेंडर भरा, तो टेंडर में 1 जुलाई का बेस रेट 400 था, 400 रुपीज था। सप्लाई के टाइम पे वो 500 अगर हो गया तो हमें 100 रुपए बढ़ा हुआ मिलेगा। वो हमारे को जितना बढ़ेगा, मतलब उससे 15 दिन पहले जिस समय हम सप्लाई करेंगे उससे 15 दिन पहले का हमें एल्युमिनियम का रेट मिल जाएगा। अब आप मतलब आप ये समझ लीजिए इन मतलब सिंपल भाषा में तो ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो हमने जो टेंडर लिया उसमें अगर मेटल का प्राइस बढ़ेगा तो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, घटेगा तो घटा हुआ मिलेगा। या मैंने आपसे समझ लीजिए आप सोना, मैंने आपसे कहा कि 1 केजी सोना मेरे को आप बुक कर दो मेरा, मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपको 1 किलो सोने पे 2000 रुपये फालतू दूंगा, ये हमारी और आपकी कंडीशन तय हो गई। जब भी आप मेरे को सोना देंगे मैं आपको 2000 रुपये फालतू आपका मार्जिन दूंगा। ये बात मैंने आज आपसे कर ली। आज की डेट है समझ लीजिए 20 अगस्त है समझ लीजिए। आज मैंने आपसे ये तय कर लिया कि आज जो भी सोने का भाव होगा उस पर 20 रुपये आप मेरे से 2000 रुपये ले लेना। आपने अब मेरे को 1 अक्टूबर को अगर सोना दिया तो मैं अब 1 अक्टूबर के तो रेट पे 2000 दूंगा। अगर मैंने आपको 1 अक्टूबर के रेट पे नहीं दिया तो फिर आपका लॉस या मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, वो जुआ हो जाएगा। आपका 2000 रुपये तो फिक्स हो जाएगा ना सर कि आज का 2000 रुपये ये है। ओके पूरी इंडस्ट्री में हमारे ऐसे ही रहता है। पूरी इंडस्ट्री जो है ना हमारी पावर सेक्टर की पूरी इंडस्ट्री में टोटली ऐसे ही चलता है सभी कंपनीज के साथ। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Okay. Next question is from the line of Mr. Akash Chaudhary from Easy Equity. हेलो सर, थैंक यू फॉर अनदर चांस। Yeah. ये मुझे जानना था, आई थिंक आपने बीच में बोला था कैपेसिटी के बारे में कि हम लोग वही 85-90% पे ही चल रहे हैं। तो अब कल को अगर बड़ा ऑर्डर आता है तो हम लोग क्या आउटसोर्स कराते हैं कि क्या, मतलब क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटी जो अपनी फैक्ट्री है अगर पूरा पीक पे चल रही है तो क्या हमें वो रोक रहा है बड़े ऑर्डर लेने से, कि अगर बड़ा ऑर्डर आ जाएगा तो हम लोग उसको कैसे फुलफिल करेंगे? जो भी ऑर्डर आता है ना सर उसकी सप्लाई अंदाजन 2 महीने बाद स्टार्ट होती है। जो भी हमें ऑर्डर मिलता है उसकी सप्लाई 1-1.5 महीना 45 डेज का तो मिलता ही है, और हमें पता है हमने कितने में बिड कर रखा है, कितने ऑर्डर आने वाले हैं, कितना क्या है। तो मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन तो मेरा रेगुलर बेसिस पे चलता ही जा रहा है। मतलब एक भी महीना ऐसा नहीं आ रहा है या कोई जिसमें हमारी कोई मशीन का नया ऑर्डर या नई चीज या नया ना जा रहा हो, वो रेगुलर बेसिस पे कैपेसिटी एक्सपेंशन चलता ही जा रहा है। सो दिस इज द थिंग कि अभी हम अगर बड़े ऑर्डर्स ले रहे हैं तभी हम इतनी ग्रोथ कर पा रहे हैं। बट हाँ, अगर आप कहेंगे एकदम से कोई 500 करोड़ का ऑर्डर आ जाए तो ऑब्वियसली मैं उसमें दिक्कत आएगी मेरे को। इतने बड़े ऑर्डर आते भी नहीं है। जो ऑर्डर आ रहे हैं उस हिसाब, मतलब ऑर्डर के हिसाब से नहीं, कैपेसिटी एक्सपेंशन एज ऑर्डर तो है ही पूरी मार्केट में, लेकिन हमारा कैपेसिटी तो रेगुलर बेसिस पे चलता ही जा रहा है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं काफी, एंड ऐसा नहीं है कि मेरा जो आईपीओ के पैसे से जो हमें करना था वही चल रहा है। मेरे अपने जो मेरे पास अपने पैसे हैं जो हम अपने लगा रखे हैं हमने पैसे, उससे भी एक्सपेंशन चल रहा है और वो रेगुलर 1-2 साल तक चलता ही रहेगा। गॉट इट, समझ गया। और सर ये जो अपना 3 सेगमेंट है ना, LT, HT और
ये वाइंडिंग वायर्स। वाइंडिंग वायर, तो इसमें हम लोग जब भी ऑर्डर कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिमाग में है क्या कि थोड़ा MVCC जैसे थोड़ा हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो गया ज्यादा करता है तो वो ज्यादा करेंगे, या डिमांड साइड में आप बताओ कि किसकी ज्यादा डिमांड आ रही है, तो एक आइडिया लगेगा ना कि हाँ हम लोग का ओवरऑल मार्जिन भी बढ़ जाएगा। डेफिनेट सर, ऐसा है कि डिमांड की बात तो है, डिमांड तो सभी में बहुत ज्यादा है। डिमांड की तो हम कहते हैं, ये नहीं कह सकते कि किसी ST केबल में ज्यादा है या MVCC में ज्यादा है, या क्योंकि इंडिया में अभी टोटल अगले 5 साल तक इतना ज्यादा लाइट के ऊपर फोकस है कि ये इन सबके बिना लाइट सभी चीजें चाहिए। जैसे कंडक्टर्स भी लगाना जरूरी है तो उसके साथ ट्रांसफॉर्मर्स भी लगाना जरूरी है, अंडरग्राउंड केबल में ST केबल भी लगाना जरूरी है, घर घर तक लाइट पहुंचाने के लिए LT केबल भी लगाना जरूरी है। तो बट हमारा फोकस क्या है कि डिमांड तो सब जगह से आ रही है, हमें कौन सी चूज करनी है वो हमारे पास है। तो ऐसा नहीं है एकदम से मैं वाइंडिंग वायर्स इज अ वेरी सेफ बिजनेस। वाइंडिंग वायर्स का काम ऐसा है कि इसमें कंपनीज कम है, कम मतलब कंपटीशन कम है, और अभी मैं 2000 सबसे पुराना काम मैं वाइंडिंग वायर्स का ही कर रहा हूँ। 2004 में मैंने शाम शुरू करा था। सो इसमें बड़ा सेफ बिजनेस है। इसमें मतलब विदाउट एनी टेंशन हमें एक ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, और वो ऑर्डर हर साल 30 to 40% से ग्रोथ होती रहती है उन ऑर्डर्स की। तो वो हम चल रहा है, उसके तो ऊपर फोकस इतना करते नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, दैट इज एन ऑटोमेटिक बिजनेस। केबल्स के अंदर क्या है कि केबल्स में अब हमारा जो फोकस है वो है कि हम MVCC ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इसमें तो प्रोसेस कम होता है। बट इसमें क्योंकि स्पेशलाइज्ड केबल है, इसके अंदर वो केमिकल कंपाउंड्स वगैरह डलते हैं, सब करते हैं, तो इसको अभी बहुत कम कंपनीज बना रही है। तो MVCC में हमारा ज्यादा फोकस है, एंड ST में ज्यादा फोकस है क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा है। वी आर बिडिंग मोर एंड मोर फॉर ST केबल। पहले सिर्फ मेरा 2%, पिछले साल में ओनली 2-3% के आसपास ST केबल्स का कंट्रीब्यूशन था मेरी सेल में, एंड बस वो इसलिए था कि हम एंटर कर गए थे। वी हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ऑर्डर्स, क्योंकि गवर्नमेंट में घुसने के लिए, काम करने के लिए आप सबसे बड़ी PQRP क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट होती है कि आपने पहले उसका ऑर्डर दे रखा हो। नाउ वी आर अ रेगुलर वेंडर ऑफ दिस ST केबल्स एंड MVCC फ्रॉम दिस ईयर। क्योंकि अभी पहले ट्रायल ऑर्डर होते हैं, फिर होता है, वो सब पार कर चुके हैं हम। पहले BIS लेना होता है, फिर ट्रायल ऑर्डर मिलने होते हैं। पिछले साल हमारा ट्रायल ऑर्डर का पीरियड था, लास्ट में जाके हमें रेगुलर ऑर्डर्स मिल गए। सो राइट नाउ वी आर, मतलब मैं बिड कर सकता हूँ, तो मेरा बिडिंग के हिसाब से अब मेरे को L1 अगर आया तो मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा, L2 आया तो उससे कम। जैसे कि मैंने बताया पश्चिमांचल में हम MVCC में L1 आए हैं, सो वी विल गेट द मैक्सिमम ऑर्डर, सो रेगुलर मिल गया। भी फोकस उस पे है, बट क्योंकि हम ऑल ओवर रेवेन्यू, हमारी ग्रोथ अच्छी चल रही है, रेवेन्यू हम ऑल ओवर बढ़ा रहे हैं, तो परसेंटेज वाइज ऑब्वियसली पिछले साल से ST एंड MVCC को हम ज्यादा करेंगे। बट अगर हम बात करेंगे अमाउंट वाइज, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट की बहुत कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। बट परसेंटेज वाइज हमारी सेल में LT एंड MVCC वी आर फोकसिंग मैक्सिमम। गॉट इट। तो बेसिकली सिंस लास्ट ईयर अपना ट्रायल ज्यादा था, तो आई थिंक इससे भी आप कॉन्फिडेंस एक मिल रहा है कि हाँ आगे जाके मतलब क्योंकि रिपीट ऑर्डर्स या फिर गवर्नमेंट के वेंडर बन गए हैं तो बार बार ऑर्डर्स आएंगे। नहीं सर, पिछले साल तो हमने सिर्फ ट्रायल्स में पूरा करा है, तो इसलिए हम ज्यादा करेंगे। इस बार तो हम रेगुलर वेंडर हैं। इस बार तो मतलब हमने बिड करा, जैसे MVCC में मैंने बिड करा पश्चिमांचल में, तो आई विल गेट मैक्सिमम क्वांटिटी। मतलब अब उसमें चाहे पॉलीकैब, V-मार्क या कोई भी डालता है, अगर मेरा रेट कम है तो मेरे को मिलेगा। उसमें इन सब ने बिड कर रखा था, उसमें लेजर ने भी बिड कर रखा था, पैरामाउंट ने बिड कर रखा था, V-मार्क में बिड कर रखा था, बट मेरा लोवेस्ट रेट आया है। अभी L1 आया, अभी LOI इशू होनी है हमें, वीओ पर L1 में आया हूँ। तो मेरे अब ये नहीं है कि किसी कंपनी का, उन्हें ये देखना है कि वो कंपनी कौन सी है, ट्रायल देना है, वो सब पार हो चुका है मेरा। सो जितना पिछली बार था, इस बार एग्रेसिवली हम ST एंड MVCC में बिड कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमारे रेट्स के अनुसार हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलेगा। समझा। दो और चीज, अपने जैसे रॉ मटेरियल तो कॉपर डायरेक्टली सोर्स करते हैं, जो भी ब्रांड हो गई या जो भी माइनिंग हो या जो भी होता है, तो अपने का कोई प्लान है क्या कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके रिसाइकलिंग करके कॉपर ले, या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, वो तो सब नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा कोई मार्जिन भी नहीं है, और उसमें हमारा टाइम, हमें तो अभी ऑर्डर्स इतने ज्यादा है कि जल्दी जो काम हो सकता है वो देखेंगे हम। उन चीजों पर तो नहीं उलझेंगे हम, उसमें कोई बहुत बड़ा बेनिफिट भी नहीं है। तो ठीक है। और एक और चीज, जैसे से अपना स्केल होगा रेवेन्यू, जो कि दिख ही रहा है आप बता रहे हो, तो मतलब लेवरेज मिलेगा क्या अपने को? जैसे मतलब क्योंकि अपने पास तो लैंड पड़ी हुई है, तो और जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए, तो स्केल पे अपना कंट्रोल कैसे आप करोगे, वो मेरे को थोड़ा जानना था। किस चीज के कॉस्ट पे कह रहे हैं आप? हाँ, कॉस्ट पे
जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोड़ा कॉस्ट पे तो मतलब इफेक्ट आएगा ही, मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा। जब जितना हम वॉल्यूम करेंगे उतना कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है इन परसेंटेज वाइज। बट फिलहाल कोई ऐसा नहीं है मेरे दिमाग में या कि कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर कॉस्ट में उससे। कोई हमें एम्प्लॉयज बढ़ाने पड़ेंगे, हम मैनेजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, ओवरहेड्स थोड़े से बढ़ेंगे ही, उस रेशो में नहीं बढ़ेंगे लेकिन हाँ बढ़ेंगे तो है, तो कॉस्ट नहीं है आ पाएगा उसमें। हाँ वही रेशियो ही जानना था, मतलब अगर 100 गुना लेट्स से डबल हो गई रेवेन्यू से, मतलब हाँ नहीं, तब भी हम मतलब कॉस्ट पे बहुत नहीं कर पाएंगे हम कंट्रोल, कि हम उसको कम कर दें। और कोई बहुत कंट्रोल कर लेंगे, 1-2% कम भी लिया है तो उससे ज्यादा हम वी आर फोकसिंग ऑन कंप्लीट हैविंग मच मोर रेवेन्यू एंड मार्जिन्स, उसी पे है। ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। Okay. Next question is from the line of Mr. Chintan Jain from Seven Capital. Hello, sir. Good evening. Congratulations on a good set of numbers. Thank you. Sir, I had one question. I had a couple of questions, sorry. आपने जो बोला था 15 to 20 crores of capex for the upcoming fiscal year. सर उसमें asset turns क्या हो जाएगा? Like क्या asset turns आ सकता है उस पर 20 crores के capex? Asset turns, I mean उससे कितना revenue generate हो सकता है जो 20 crores का additional capex आपने गाइड किया है, उससे कितना revenue generate हो सकता है? कितना हो सकता है तो हम अगर उतना मैं कर देता हूँ तो आई थिंक हम उस पे वो होने के बाद पूरा हम 700 to 800 करोड़ तक जा सकते हैं, अगर जब वो पूरा हम कर लेते हैं इस साल का। जो कि मैं मतलब हमारा फोकस है सारे के सारे ये करने का कि नेक्स्ट ईयर हम एक अच्छा ग्रोथ और दिखाएं। साल तो चल ही रहा है तो इतने तक हम जा सकते हैं उसके बाद। ओके सर, गॉट इट। एंड सर वन मोर थिंग, आपने जो आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें यू मेंशन्ड आपका रेवेन्यू में से 38% कम्स फ्रॉम ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स। तो आप जितना अंडरस्टैंडिंग आपके प्रेजेंटेशन से मिला, यू ट्रेड एल्यूमिनियम रॉड्स ना, जिसमें आपने मेंशन किया था। तो सर उसमें व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन बनता है वो ट्रेडिंग ऑफ एल्यूमिनियम रॉड्स में? एंड आगे जाके विल दैट मतलब आपका फोकस उस पे एक्सपैंड करने का है या यू वांट क्या बोलते हैं मिनिमाइज दैट सेगमेंट एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू? सर लास्ट ईयर हमने ट्रेडिंग करी थी एल्युमिनियम रॉड्स की बिकॉज ऑफ सडन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ एल्युमिनियम रॉड बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट वॉर एंड एवरीथिंग। गोल्ड सिल्वर सब कुछ फिर इस साल बहुत ज्यादा बढ़ा था तो हमें सेम मार्जिन मिल रहे थे एज पर जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो हमने थोड़ा बहुत करा था। अब वो चीज खत्म हो गई है, वो लास्ट ईयर एंड अराउंड जनवरी फरवरी में वो चीज खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने बिल्कुल ट्रेडिंग हमारी बिल्कुल बंद हो गई है, जीरो हो गई है। इस बार जो हमने रेवेन्यू करा उसमें ट्रेडिंग बिल्कुल बहुत 0.01% के आसपास की ट्रेडिंग जो नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस में होती है लाइक स्क्रैप एंड ऑल वही करी है हमने। एंड कोई भी फोकस नहीं है उस तरफ। वो तो बाई चांस कभी वंस इन अ वाइल कभी ऐसी चीज होती है कि कोई इतनी तेजी से इन्फ्लेशन आए किसी प्रोडक्ट में, सो वी आर टेकन दैट। बट राइट नाउ इस साल मेरे को नहीं लगता कि हम मोर देन 0.5% से भी ज्यादा जाएगी। अगर जो नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस में होती है वही हो पाएगी, वही करेंगे बस। And sir, I'm sorry if I missed this, but for the upcoming fiscal year, LT cables, HT cables and MVCC में क्या-क्या contribution रहेगा उनका? मैंने मेरे हिसाब से जो अब इस बार जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 30 to 35% के आसपास HT केबल्स का एंड अराउंड सेम 30 to 35% LT केबल्स का, मतलब एंड उतना ही बैठ रहा है बाई चांस। एंड अराउंड 30 to 35% वाइंडिंग वायर्स का। तीनों का कंट्रीब्यूशन मेरे को लगता है कि बराबर रहेगा इस बार। जो पहले क्या होता था कि एलटी केबल का बहुत ज्यादा था, उसके बाद मतलब वाइंडिंग वायर्स एलटी केबल का वाइंडिंग वायर्स का सबसे ज्यादा था, फिर एलटी केबल का था, फिर एचटी केबल का था। इस बार मेरे को लगता है तीनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर पे रहेगा। ओके सर, अंडरस्टूड। एंड सर जस्ट वन मोर थिंग, आपके डीआरएचपी में आपने मेंशन किया था कि यू हैव अनदर प्रमोटर एंटिटी नेम्ड एसएमवी एंटरप्राइजेस, एंड उसमें आपने ऐसा मेंशन किया है कि आई मीन यू हैव नो नॉन कम्पीट क्लॉज, एंड इसमें कुछ आपका है एनी गाइडेंस ऑन दैट कि आपका क्या प्लान्स है विद दैट एंटिटी? क्योंकि वाइंडिंग वायर्स के ऑर्डर्स हमारे पास काफी आते हैं एंड
SME Enterprises only does the work of winding wires only. Winding wires के ही सिर्फ वो काम करती हैं, और उसमें क्या होता है कि जो सुसान बिड करते हैं हम लोग टेंडर्स में, L1 L2 L1 हम आ जाते हैं किसी टेंडर में, तो जनरली L3 L4 SME एंटरप्राइज आती है, वो सिर्फ बाइंडिंग वायर्स का काम करती है, एंड इट्स सेल इज अराउंड 30 to 40 करोड़। उसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, टोटली हमारा फोकस सुसान इलेक्ट्रिकल्स में है। एंड वो जो SME एंटरप्राइजेज है वो बाइंडिंग वायर जैसे जैसे उसमें ऑर्डर्स मिलते रहेंगे वो अपना करती रहेगी, और कोई प्लान नहीं है बाकी उसके अंदर फिलहाल कुछ भी। So you mean to say कि बाइंडिंग वायर्स के लिए जब बिडिंग करते हैं हम लोग, तो यू बिड फ्रॉम बोथ सुसान वायर्स एंड केबल्स एंड SME एंटरप्राइजेस? नॉट फ्रॉम बोथ। मतलब कुछ टेंडर्स में जैसे हमारी कैपेसिटी है, अभी हमें एनटी में बाइंडिंग वायर्स में समझ लीजिए हमने सोचा है कि 100 करोड़ का, तो उस टेंडर्स में सुसान बिड कर लेगा। कुछ अलग टेंडर्स में SME बिड कर लेता है जिसमें कि सुसान बिड नहीं कर रहा होता कि भाई उसमें अभी हमारे पास और वाइंडिंग वायर्स का काम नहीं कर सकते हम, क्योंकि कैपेसिटी जितनी है उतना काम हम ले लेते हैं। उसमें भी वाइंडिंग वायर्स में भी हम अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, बट बाकी काम SME एंटरप्राइजेस दूसरे टेंडर, जो हम काम जिस टेंडर को हम छोड़ देते हैं उसमें SME एंटरप्राइजेस ले लेती है काम। एंड सर आई मीन हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सा टेंडर आपको छोड़ना चाहिए एंड कौन सा जैसे हमने कि अगर सुसान में समझ लीजिए कि 400 करोड़ रुपए के टेंडरों में ऑलरेडी बिड कर रखा है, जिसमें से कि हमें लगता है कि हम 40-50 करोड़ के 100 करोड़ के हमें मिल जाएगा काम, जो कि हमें अगले नेक्स्ट 2 मंथ्स में देना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा में बिड करने का कोई फोकस नहीं रहता है। मतलब जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो उसमें हम कर लेते हैं, बट नॉट बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे मैंने बताया तो 30-40 करोड़ के आसपास काम कर रहे हैं, तो वो टेंडर उसमें डाल लेते हैं। Okay, sir. That's it from my side. Thank you and all the best to you. Thank you very much, Chandan ji. Yeah. Okay. Next question is from the line of Mr. Deepak Mehta. Okay, I think he's on mute. Next question is from the line of Mr. Ankur Gulati from Genuity Capital. विशाल, ये जो 140 करोड़ का कंफर्म ऑर्डर बुक है वो उस क्वार्टर में एग्जीक्यूट हो जाएगा? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है सर, आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है काफी ठीक से। जो 140 करोड़ का ऑर्डर बुक है एज ऑफ 30 जून, वो इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट हो जाए आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से? जस्ट वांटेड टू कंफर्म। ऐसा है सर कि जो 140 करोड़ का जो है ना, इसमें से अब क्या है कि जो 140 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक है उसमें से कुछ माल तो काफी माल उसमें से चला जाएगा, और कुछ माल ऐसा नहीं जो हमारे जैसे हमें जुलाई में भी कुछ टेंडर्स खुले हैं, अगस्त में भी कुछ खुले हैं, ये सितंबर में भी उसमें से जाएगा। तो मिक्स एंड मैच जाएगा सर। कुछ जो टेंडर्स हमारे जुलाई में खुल रहे हैं, अगस्त में खुल रहे हैं, उसमें से भी कई बार इमीडिएटली हमें देना पड़ता है, जैसे कि हमारे कस्टमर की डिमांड होती है कि इस टेंडर को, इस वाले माल को जल्दी दे दो। और कुछ क्या होता है फिर वो कह देते हैं इस वाले टेंडर का थोड़ा लेट कर दीजिएगा, थोड़ा डेफर कर देते हैं उसको। तो एज पर डिमांड ऑफ द कस्टमर जो नए टेंडर है कई बार उसमें से भी जल्दी चला जाता है और कई बार पुराने से लेट हो जाता है। सो इस तरह से चलता है हमारा ये काम ना, जैसे जिस साइज की, जिस केबल के साइज की, जिस ग्रेड की उनको जल्दी जरूरत होती है उसको जल्दी मांग लेते हैं, जिसकी होती है वो कहते हैं इसको डेफर कर दो थोड़ा सा। तो जनरली हमारा जो ऑर्डर आते हैं, जनरली जो हमारे वो आते हैं अराउंड 4 मंथ्स की सप्लाई के आते हैं जनरली हमारे जो टेंडर्स आते हैं, 3 to 4 मंथ्स की सप्लाई के। और जून के बाद कितने ऑर्डर और एडिशनल आपको मिले अभी तक पिछले 2 महीने 1-1.5 महीने में सर? बाई चांस की बात है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इसको निकाल के नहीं रखा था और इस फॉरम पे मैं एक वैसे नहीं बता सकता आपको कि मैं कुछ भी बोल दूं, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। तो बट हमें उसी रेशो में ठीक ठीक, मतलब मैं आपको इतना बता देता हूँ सर, ऑर्डर हमारी इंडस्ट्री में, मेरे लिए नहीं किसी के लिए भी, ऑर्डर इज नॉट द प्रॉब्लम। ऑर्डर इज इन आवर हैंड कि हम कितने ले सकते हैं। ऑर्डर इतने सारे सर स्टेट्स हैं, आप सोचिए इंडिया में,
इतना सारा वॉल्यूम है, इतना जितनी केबल लगती है वो फूक जाती है। नई केबल तो लगती ही लगती है, जो लगी हुई है वो 5 साल, उसकी भी एक लाइफ है, कुछ टाइम की लाइफ है, हर एक चीज की लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद जो लगी हुई है वो भी फूकती रहती है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि एक इंसान दिखाता है कि ऑर्डर तो मैं ले लूंगा, मैं अपनी ही कह रहा, मैं किसी की भी कह रहा हूँ, कोई भी पावर सेक्टर में काम कर रहा है, किसी भी आइटम में कर रहा है, तो पावर सेक्टर में अभी फिलहाल है। तो ये है सारा, इसलिए मैंने लिख नहीं रखा था कि अभी तक मेरे को कितने मिल गए, या मैं रेगुलर उसको नहीं वो करता हूँ, क्योंकि ऑर्डर्स तो मेरे को पता रहता है कि है ही, चल ही रहे हैं, आ ही जाएंगे वो तो। विशाल, एचटी केबल के लिए कितने स्टेट्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपको एनरोलमेंट हो गया? सर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं उसमें ना हर एक टेंडर में पीक्यूआर होती है, प्री क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स। प्री क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स जो मैच करता है उसको वो टेंडर मिल जाता है। इसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हम जो कुछ उसमें 5-7 कंडीशंस होती हैं एक किसी भी टेंडर को डालने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंडीशन होती है कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, 200 करोड़ 100 करोड़ किसी टेंडर में जो भी होती है। सेकंड होती है आपके पास बीआईएस होना चाहिए, एक टर्नओवर की कंडीशन होती है, एक बीआईएस की कंडीशन होती है। मेन कंडीशंस बता रहा हूं मैं आपको। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपने जो भी हम आपको आइटम का दे रहे हैं उसकी आपने सप्लाई कर रखी हो पहले गवर्नमेंट को ही, अदरवाइज कंसीडर नहीं होता है आपका टेंडर। जो सबसे मुश्किल होती है, जो सबसे जिसके वजह से हम काम नहीं कर पाते। और कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ कुछ टेंडर्स में होता है कि अगर आपने पहले सप्लाई नहीं करी तो आपको ट्रायल ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो फिर आपको ट्रायल ऑर्डर आप जब 2-3 कर लेते हैं तो यू बिकम, ये आपकी क्वालिफाइंग कंडीशन खत्म हो जाती है कि पहले आपने किसी गवर्नमेंट एंटिटी को दे रखा होगा। तो जो हम टेंडर भरते हैं उसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन नहीं, पीक्यूआर पूरी करनी पड़ती है। अब पीक्यूआर में मेरी ये कंडीशन पूरी हो गई है कि मैंने जैसा बताया कि पिछले साल हमने ट्रायल ऑर्डर्स पूरे कर लिए थे। सो मेरी ये कंडीशन पूरी हो जाती है कि मैं अब अब जैसे मैंने यूपी में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, गुजरात में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, पंजाब में मैं एचटी केबल दे चुका हूँ, एमपी में मैं एचटी केबल दे चुका हूँ। तो इन 4 स्टेट्स में तो मैं उन स्टेटों में ही दे चुका हूँ। सो अब एक कंडीशन जो आ रही है जो कई स्टेट्स में है, कई स्टेट्स में लाइक उत्तरांचल में और एक दो जगह पे है कि वहां पे सीसीवी लाइन आपके लिए, सीसीवी लाइन एक मशीन होती है, उस मशीन से आपका मटेरियल बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आप सप्लाई नहीं कर सकते। सो मैंने अभी 3-4 स्टेट इंडिया में ऐसी है जहां पे सीसीवी, अब मेरे पास ये पीक्यूआर मैच नहीं हो रही थी पीछे, मेरे पास सीसीवी लाइन नहीं थी, मेरे पास सायोप्लास्ट मशीन है 3, जो कि लोगों के पास 1-2 ही होती है, सीसीवी लाइन मशीन नहीं थी मेरी। ये सीसीवी लाइन ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं, इसके पार्ट्स मेरे फैक्ट्री में आ चुके हैं, 50% पार्ट्स मेरे फैक्ट्री में आ चुके हैं, 50% मेरे विद इन 15 डेज में आ जाएंगे। इसका अराउंड 1.5 to 2 months में ये मेरी मशीन भी चालू हो जाएगी, देन दिस पीक्यूआर विल आल्सो गेट मैच्ड। सो मैं इन सब जगहों पे ऑलरेडी दे रहा हूँ। होप कि मैं समझा पाया हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती टेंडर डालने के लिए, बेसिकली मैं ये समझा रहा था आपको। सो आई कैन बिड इन एनी स्टेट। उसमें कुछ एक आध पीक्यूआर और कोई ऐसी आ सकती है जो कि मैं मैच ना कर रहा हूँ। सो मैक्सिमम टेंडर्स में वी कैन पार्टिसिपेट, और जैसे जैसे मैं पार्टिसिपेट ज्यादा मेरे को ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, मेरी ऑर्डर बुक और उस आइटम की अच्छी होती जाएगी, तो मैं और प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई भी पीक्यूआर ऐसी नहीं बची होगी जो मैं ना कर पाऊँ। आपका पावर ग्रिड का अप्रूवल आ गया एचटी का केबल का? नहीं, अभी पावर ग्रिड का सर इन प्रोसेस ही चल रहा है। उनकी हमने जो भी क्वेरीज थी, जितनी भी क्वेरीज थी, वो सारी की सारी क्वेरीज को हमने पूरा कर दिया है। अब उनकी कोई क्वेरी बची नहीं हुई है, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी हमारा अब फैक्ट्री इंस्पेक्शन एक होगा, उसके लिए मेरे पास सारी मशीन्स हैं, और उसके बाद हमारा हो जाएगा। मतलब ये एक लेंथी प्रोसेस चलता है पावर ग्रिड के साथ, उनकी बहुत सारे क्वेरीज होती है, उनके बहुत सारे पेपर्स उसमें देने पड़ते हैं, जो रह जाता है उसके लिए फैक्ट्री के लिए सारा आपको प्लान सब कुछ, प्लानर वगैरह। तो धीरे धीरे करके हमने अपने 11 आइटम्स के लिए उसके अंदर दे रखा है अपना रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड होपफुली वी विल गेट दिस विद इन अ मंथ। जैसे ही आएगा मैं एक बार अनाउंसमेंट में डालूंगा उसको। ये एचटी केबल के लिए कर रहे हो भी आप या एलटी के लिए कर रहे हो? इन फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स जो भी मैं बनाता हूँ सर, बाइंडिंग वायर छोड़ करके उसके लिए मैं बाद में करूंगा, क्योंकि वो दूसरी फैक्ट्री में बनता है मेरा।
तो मैंने सोचा था पहले केबल्स का कर लेता हूँ, सारे केबल्स के लिए डाला है मैंने, LT केबल्स, कंडक्टर्स, ST केबल्स एंड MVCC सबके लिए, एंड वाइंडिंग वायर्स का एक बार हो जाता तो उसका भी डालूंगा साथ। ठीक है। और हिस्टोरिकली पहले 6 महीने में जो रेवेन्यू होता है वो पूरे साल का कितना 40% रहता है? रेवेन्यू जो पहले 6 महीने का होता है सर वो 30%, 25 to 30% ही रहता है। जो हमारी पावर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू होता है या सबसे ज्यादा जो काम होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ही होता है। उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है मटेरियल सप्लाई करने का, बिकॉज गर्मी आने वाली होती है, तो जो भी मटेरियल 6 महीने में परचेज करा जाता है वो आगे गर्मियों में लगाया जाता है। सो सबसे ज्यादा उस समय हमारे पास प्रेशर रहता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आपका फाइनेंस कॉस्ट 2,33,00,000 था, तो ये सारा वर्किंग कैपिटल की तरफ गया या कुछ आपने लॉन्ग टर्म डेट भी और इंक्रीज किया है पिछले 3 महीने में? अभी जो पहले गया है सर, ये तो पहले जितना था उसी पे गया है, बट अभी कोई लॉन्ग टर्म डेट तो मैंने, हाँ थोड़ी मैंने लिमिट्स अपनी जरूर बढ़ाई हैं, बट कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं बढ़ाया है कोई ऐसा। ओके विशाल, लास्ट, सॉरी अगेन रिपीटिंग, एनीथिंग सर, बताइए ना। तो 95 करोड़ आपने पहले 3 महीने में किया, 140 का आपका लेट्स से करंट ऑर्डर हो गया मोटा मोटा, वो अगर 3 महीने में पकड़ता हूँ तो 230 करोड़ बन गया। 230 को अगर मैं 30% पकड़ मानूं तो साल का काफी ऊपर तक टारगेट जा रहा है, तो ये थॉट प्रोसेस सही है? अभी सेकंड क्वार्टर का 140 होगा या कितना होगा मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, बट ठीक होगा, अच्छा होगा। एंड मैंने अपना जो RHP में टारगेट, मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि अपना जो टारगेट मैंने RHP में दिया था उससे बहुत अच्छा उससे बहुत अच्छा कर लेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी तो फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम एक अच्छा कर देंगे इस बार ना, बट कोई फिगर या कोई वैसे नहीं कह सकता मैं, बट लग रहा है कि ऐसा कि कर पाएंगे हम अच्छा। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Okay. Due to constraint of time, we will limit the Q&A. So we'll have the one last question from the line Hello? of 361 from Mr. Akhil Malhotra. Yeah, hi. First of all, congratulations for the good set of numbers. And I have just one question. That अगर सर आप बोल रहे हैं कि HT cables and MVCC में हमारा contribution mix बढ़ेगा, so can we assume कि margins भी obviously increase होंगे, और as आपने already बोला है कि मेरा जो raw material है वो already fix होता है, मतलब उसमें कोई change नहीं आता, तो जैसे product में उसमें change आएगा वैसे ही margins अपने आप improve हो जाएंगे, as you said कि 15 to 20% margin belongs to HT cables and NVCC. So that's my question. Thank you. मैं आपसे देखिए बिल्कुल सही बात बोलूंगा, मैं किसी भी इन्वेस्टर से हम नहीं चाहते कि कोई उसको कोई गलत मिसकंसेप्शन रहे या कुछ रहे। लास्ट ईयर और अभी तक हमारा जो मार्जिन्स हैं वो एक फैक्टर ये भी रहा, सब कुछ रहा कि भाई हमारे फैक्टर्स में ये भी रहा कि बहुत तेजी से जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, स्टॉक हमेशा हमारे पास ज्यादा ही रहता है। हम लोग क्योंकि बिजनेस करते हैं तो हमेशा जितने ऑर्डर्स होते हैं उससे ज्यादा बुकिंग चलती रहती है, क्योंकि फैक्ट्रियों में चाहिए होते हैं मिनिमम स्टॉक भी, तो मार्जिन वहां से भी हमारे आए हैं। बट मैं आई कैन अश्योर यू दैट कि मार्जिन कम नहीं होंगे, बट अगर बढ़ते हैं तो उसका मैं श्योरिटी आपको नहीं दूंगा कि हाँ भाई मेरे मार्जिन अभी जैसे 6.5 के आसपास चल रहे हैं तो 8-10 हो जाएंगे, वो बाकी चीजें रहती है। बट एक कंट्रीब्यूशन वो भी था, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कम तो नहीं जाने की सिचुएशन लग रही है अभी ऐसी कोई। ओके सर, बट बेसिकली आपने बोला ना कि जैसे कॉस्ट तो आपकी फिक्स है, सो बेसिक कॉस्ट क्या है? मेन कॉस्ट तो आपकी सारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप कह रहे हो कोई चेंज ही नहीं आता है। एंड इफ यू शिफ्टिंग अ बिग मिक्स टू HT एंड MVCC टुवर्ड 15 to 20% whatever you said in the margin, so obviously इस हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। बट इसकी मैं आपको ना, एक होता है कि प्रमोटर एक चीज कह देता है हाँ जी होगा ही होगा, तो इन्वेस्टर एक लेके चलता है कि हाँ भाई मेरे को भी ऐसा लगता है कि होगा, आपको भी समझ में आ रही है, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस यू फॉर दैट कि भाई आप उसके बेस पे कोई भी काम करें। ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, मैं प्रॉमिस आपको ये कर सकता हूँ बहुत नीचे मार्जिन पे हम नहीं जाएंगे, बट वी विल डू बेटर
Okay. And so just the last question, and what's your vision for like 2-3 years in terms of revenue? आई थिंक मैं अपने आप को एक बहुत अच्छे स्केल पे देखता हूँ कि क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर मतलब HT क्रैक करने वाले छोटे प्लेयर्स में जो अभी मैं ही एक अभी तक ट्रायल्स वगैरह सब पार करके आ चुका हूँ यहाँ तक। बड़ी कंपनीज के बीच में मेरे रेट्स खुल रहे हैं जिसमें मेरे को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो एंड वी आर वेरी एग्रेसिव इन वेरी एग्रेसिव इन इम्प्रूविंग आवर कैपेसिटी। सबसे ज्यादा हम उस पे फोकस हमारा है। वी आर डूइंग एवरीथिंग टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी टू एनी स्टैंडर्ड्स एनी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अराउंड 2-3 इयर्स में वो आप लोग जज कर सकते हैं, वो आप लोग जज करिए सर। मैं तो हर आदमी अपने लिए तो सोचता ही है ये एक अच्छे स्केल होगा, बट अच्छा एक अच्छे पे खड़े होंगे हम एक अच्छी सिचुएशन पे। ओके, तो बस सर लास्ट ये कि आप बिडिंग का प्लीज थोड़ा बता दीजिए, हमेशा बता देना कि कैसे बिडिंग चल रही है। आई मीन कितने प्रोजेक्ट्स के लिए हमने बिडिंग की हुई है। सो दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर। एक बात मैं ये बताता हूँ सर, अगर हम ना ऐसे अनाउंसमेंट देंगे ना कि भाई हम इतने में बिड कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, दैट विल लुक कि भाई कंपनी अपने आप को ज्यादा वो कर रही है, मैं आपको ज्यादा ही अपने आप को दिखा रही है मार्केट में या कर रही है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम ऐसी अनाउंसमेंट रेगुलर करना एक मतलब मेरे को पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि इंसान को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। मेरी हमेशा ये रहती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सर बिड करना इन प्रोडक्ट्स पे कोई बड़ी चीज नहीं है। बिड तो हमारे हमेशा ही रहेगी। हम कोई टेंडर छोड़ते नहीं है। मिलने पे हम टेंडर छोड़ देते हैं अपने हिसाब से कि भाई हमें इस रेट पे मिल रहा है, अभी कैपेसिटी है नहीं है वो। तो बिड तो सर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि बिड तो हम जैसे अभी 800-1000 पे कर रहे हैं, वो बढ़ता रहेगा। हम उसको 1200 पे करेंगे, 1500 पे करेंगे, 1500 पे करेंगे और बढ़ाते रहेंगे। बट वो बिड वो चीज़ है वो सर हम हर क्वार्टर पे आपको देंगे डेफिनेटली। नॉट बीच में वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you very much. Okay, thank you everyone for joining the call. So this marks the conclusion of the conference call. Thank you everyone for joining. And if investors have any questions, they can reach out to Moonwalk Capital. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Goodbye.